آج کے جلسے کے اثرات کس کے اوپر مرتب ہوں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کے جلسے میں ریکارڈ لوگ جمع ہو گئے اور ایک نئی ہٹ فلم ثابت ہوا یہ جلسہ۔ طاقتور کتنے جاہل ہیں اور آج یزید کی یاد کیسے تازہ ہوئی؟ آج کی گورکھتندہ میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھتندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ ہے یہ بڑا منی ہیز ہے، اور اس حوالے سے کہ جب جلسہ ہو رہا تھا تو رکاوٹیں ڈالی گئیں، این او سی دیا گیا، جس جگہ کا دیا گیا اس کو تبدیل کر دیا گیا، چھوٹی جگہ دی گئی، بدبودار علاقہ تھا، پھر سامان کو نہیں لے جانے دیا گیا، ساؤنڈ سسٹم کے اندر رکاوٹیں ڈالی گئیں، پورے ملک کے اندر کنٹینرز لگائے گئے۔ لوگ اس کے باوجود جو تھے وہ گھوڑوں کے اوپر سائیکل پہ سوار ہو کر پیادل چل کر پورے پاکستان سے نکلے۔ ایک میں لاہور کی مثال آپ کو دے دوں، وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب ختم نبوت کے حوالے سے یا جو بھی تھا وہ ایک جلسہ کر رہے تھے، اور جب وہاں سے لوگ واپس نکلے مولانا صاحب کے، تو لاہور سے جن پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں نکلنے دینا تھا وہ مولانا صاحب کے لاؤ لشکر کے ساتھ جب وہ وہاں سے نکلے تو اسی کے ساتھ ہو لیے، جھنڈے جیبوں میں ڈال کے اور گاڑیوں کے اندر ڈال کے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، کے پی کے سے تو لوگوں نے آنا تھا، بلوچستان، کوئٹہ، پنجاب بھر سے لوگ، اور بالخصوص پنڈی اور اسلام آباد کے جو لوگ تھے وہ بیشتر اور اکثر جو تھے وہ پیادل چل کے وہاں جلسے میں پہنچے۔ جب بھی کسی سیاسی جماعت کا جلسہ ہو اور اس میں لیڈرشپ نہ ہو، اور لیڈرشپ ہو بھی تو اس صورتحال کے پیش نظر بھی لوگ اسی دن جب جلسہ شام 5 بجے شروع ہونا ہے تو لوگ ایک آدھ گھنٹہ یا 2 گھنٹے پہلے یا جلسہ شروع ہونے کے دوران یا اس کے بعد وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ یہ واحد پاکستان تحریک انصاف ہے جس جماعت کو پچھلے 2 سالوں سے اور 15 مہینے سے کم از کم کچلا جا رہا ہے، خوف ہے، ہراس ہے، ساری چیزیں ہیں، جیل میں ہے لیڈر، اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ 2 دن پہلے اور خاص کر 1 دن پہلے وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں اور بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں۔ اور آج جب میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو جلسہ جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے۔ ساؤنڈ سسٹم بھلے اس لیول کا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ساؤنڈ سسٹم ہے، چیزیں ہیں۔ اب یہ سارا احوال بتانے کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جلسہ ہو گیا، کنٹینرز ہٹا دیے گئے، لوگ، پولیس جو تھی انہوں نے نمبر پلیٹ کے اوپر سیلو ٹیپ لگا رکھی تھی، جعلی نمبر پلیٹیں بنا کے لوگوں کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تاہم اس کے باوجود لوگوں نے خوف ڈھائے جانے کے بعد بھی خوف کے بتوں کو توڑا، اور اب یہ جو جلسہ ہے یہ کس کے اوپر اثرات جو ہے وہ مرتب کرے گا۔ دیکھیے، اس جلسے کا سب سے بڑا نقصان فارم 47 کی جو حکومت ہے اس کو ہوگا، اس سے بڑا نقصان، اور اس جلسے کو باغور دیکھنے والی اور جائزہ لینے والی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا نہیں کیا، کیسے کیسے حالات نہیں کروائے، مگر یہ اس کے باوجود لوگ آ گئے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں نا کہ لوگوں دیکھیے گا کہیں ساجد، ماجد، واجد جمع نہ ہو جائیں، تو کسی نے کمنٹ کیا تھا تو میں ان کو یہاں پہ مختصر سا جواب بھی دے دوں۔ یہ جو طاقتور ہیں، یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں، سلوار قمیض پہن کے جاتے ہیں، وہ انہیں اکثر کہتے ہیں بڑے صاحب چھوٹے لوگوں کو کہ دیکھیے گا کہ وہ کہیں باہر لوگ جمع تو نہیں ہوگے۔ تو یہ ساجد ماجد وہ ہیں جس کو بڑے بڑے جرنیل جو ہیں اپنے ماتحت لوگوں، کوئی ساجد ہوگا، کوئی ماجد ہوگا، کوئی واجد ہوگا، تو میں نے اس کو ایک نام دیا تھا کہ اپنے لوگوں کو، وہ نیچے جو کام کرنے والے فیلڈ میں انٹیلیجنس کے لوگ، انہیں کہتے ہیں کہ ساجد ماجد واجد، دیکھنا کہیں لوگ تو نہیں جمع ہوگے، فون کریں گے، سامنے بتائیں گے، تو پھر وہ ان کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں فیلڈ سے۔ تو یہ سب سے زیادہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ لوگ جمع نہ ہو جائیں، لوگ نہ آ جائیں، اور عوام ویسے بھی طاقت کا سرچشمہ ہوا کرتے ہیں تو لوگوں سے یہ بہت ڈرتے ہیں۔ اب ہوگا کیا کہ جب یہ اسٹیبلشمنٹ دیکھ لے گی کہ لوگ تو عوام جو ہیں وہ تو عمران خان کے ساتھ ہیں، اب اس کے اوپر تو کیسز بھی کوئی نہیں ہے، بلا وجہ اس شخص کو ہم نے جیل میں رکھا ہے، تو لہٰذا جب تک مزید ہم انتظار کریں گے، کچلیں گے، ملک کے حالات بہت برے ہیں۔ میں اس کی بھی ایک مثال آپ کو دوں گا، تو یہ تو لوگ باز نہیں آ رہے، تو لہٰذا وہ سوچنے کے اوپر مجبور ہوں گے، کیا مجبوری ہوگی، کیا حالات ہوں گے، یہ تو ہم دیکھیں گے۔ لیکن اس اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے دھکیلنا، یہ بہت پرانی جڑیں ہیں ان کے اندر، چونکہ ان کے ہر جگہ پہ ٹاؤٹ بیٹھے ہیں، تو یہ ٹائم لگے گا، لیکن اتنا وقت اب ان کے پاس بھی باقی نہیں ہے کہ وہ مزید تجربے کریں، چونکہ پہلی دفعہ انہوں نے ہار مانی ہے۔ آپ گوگل پہ جائیں اور دیکھیں کہ 1 پاؤنڈ جو ہے وہ پاکستانی روپیز میں کتنے کا ہے، تقریباً 371۔ آپ اسی گوگل کے اوپر جا کے دیکھیں کہ سری لنکا جو ہے اس کی کرنسی جو ہے وہ 1 پاؤنڈ کے مقابلے میں کتنی ہے۔
रुपये का फ़र्क है। श्रीलंका का 390 या 91 है, और पाकिस्तानी रुपीस जो है वो पाउंड के मुकाबले में 370 प्लस है। तो श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हो गया था, वहाँ पे चीज़ें हुई थी, तो ये सिर्फ अनाउंस करना बाकी है, बाकी मुल्क की मैशत जो है वो ठीक नहीं है। अब ये जो फिल्म चल रही है और वफाकी हुकूमत ने अपने रद्द-ए-अमल से इस जलसे को होने से कबल ही रिकॉर्ड तोड़ फिल्म हिट बना दी, और जितनी रुकावटें लगाई गईं उन रुकावटों की वजह से और ऐसे हालात की वजह से झूठी खबरें चलाकर जितनी कोशिश की गई कि इस जलसे को नाकाम बनाया जाए, अवाम को मुतनफ़िर किया जाए, वो सारा कुछ ना हो सका। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ, बल्कि मिसाल देने से पहले आप देखें कि बिला वजह का हिजान है, कांपते लहजों से खाली धमकियाँ कानून साजी करेंगे, बयानात की बारिश, और इस कदर बेचैनी और हालात हैं कि असल ताकत और नाम ही एतमाद का है, ये कहा जा रहा है। और आप देखें कि कल से खबर चल रही है कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो तनाज़ात हैं और मुस्लिम दुनिया के और इसराइल के दरमियान जो दूरियाँ हैं, उनको इजराइल ये कह रहा है कि दूर करवाने के लिए वाहिद शख्सियत इमरान खान है, बानी चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान। अब ये बयान चलवा कर इस तरह का तासर दिया जा रहा है कि इमरान खान जो है वो प्रो इजराइल है और इजराइल बैकिंग कर रहा है इमरान खान की, जबकि ये बिल्कुल झूठ है, ये सफ़ेद झूठ है। और ये इद्दत में नकाब वाला केस इन्होंने बनाया, क्या क्या चीज़ें नहीं की। उसके बावजूद जब कुछ नहीं बन पाया तो ऑक्सफोर्ड चांसलर का इलेक्शन लड़े तो सलमान रुश्दी के मुखालिफ है और सच्चा दीन का मानने वाला है और आशिक रसूल है कहते हैं, और दूसरी जानिब ये इतने बेवकूफ़ और जाहिल हैं कि अब ये कह रहे हैं कि इजराइल जो है वो इमरान खान की बैकिंग करे, और इजराइल ये कहता है कि इमरान खान जो हैं वो इजराइल की और मुस्लिम दुनिया के दरमियान जो दूरियां हैं उनको ख़त्म करवा सकता है। यानी कि इससे बड़ी जाहलियत और क्या होगी। और ताकतवरों का स्क्रिप्ट जो है वो अब तक नहीं बदला कि वो कहते हैं कि पीटीआई की जलसा गाह के मकाम पर मुश्तिब जो है एक बैग मिलने की इतला मिली है। वो बैग जो है हम स्क्वाड एहलकार नाजुक टहनी से मशकूक बैग चेक करता रहा, और दरख्त की टहनी के साथ वो लटका था, उसके अंदर पता नहीं आलू बहारे पड़े थे या क्या था। जबकि जब ये अफवाह फैलाई जा रही थी, वो वीडियो बनाई जा रही थी, उस बैग को स्क्वाड चेक कर रहा था, तो उसके साथ ही जो दूसरा पुलिस ऑफिसर खड़ा था वो बेचारा मुस्कुरा कर किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रहा था, भाईजान ये बैग जो है वो मिले, उसमें कोई बम धमाका हो, मस्जिद से भी तो मिला था ना पिछले जलसे के दौरान, क्या बना उसका? उसमें जूते थे, केले थे, क्या था, क्या पड़ा हुआ था, कोई बारूद था। तो भाईजान ये पुराना दौर बदल गया, आपकी जहलियत वहीं की वहीं है। तो इस तरह की हरकतें करके आप कभी भी कुछ नहीं कर सकोगे। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, दौर बदल गया। कौन नहीं बदला? आप नहीं बदले। क्या चीज़ नहीं बदली? आपकी सोच नहीं बदली। भाईजान आप लोगों ने तो जितने आइन बने थे, 1956 वाले को आपने फारिग किया, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में कह रहा हूँ, 1962 वाले को फारिग किया, 73 में आके भुट्टो साहब की मेहरबानी उन्होंने चीज़ें की। तो अब जो हालात हैं वो 1970, 73, 72, 74 वाले नहीं हैं, आप भूल जाएं। ये हालात किसी और डगर पे पहुंच चुके हैं। और अब जब जलसा होगा तो आप क्या कहेंगे? बड़ा नाकाम जलसा, और लोग तो आए नहीं थे, हमने बड़ा रोका, लोग बड़े बेशर्म थे, उसके बावजूद पहुंच के हैं, इसने 9 मई किया था, फलां चीज़ की थी, सब कुछ दफन हो गया। ये एक बकवास नामा था, 9 मई, इसकी कोई हैसियत नहीं थी। आपने एक जाल बुना, उस जाल के अंदर पीटीआई फंस गई, उसको वजह बना के आपने सारा कुछ किया। और जिस वजह से आप कर रहे थे और जो आपके मकासद थे, आज आप फिर उसमें नाकामों में देख लें। अवाम तो इमरान खान के साथ हैं, पार्टी तो फॉर्म 45 के तहत जीत चुकी, इमरान खान जेल में भी रह के सबसे मजबूत, हर टॉक शो में, हर टीवी चैनल के ऊपर उसी की बातें होती हैं। तो लिहाजा आप और क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकेंगे। तो आज के जलसे के बड़े अच्छे इम्पैक्ट पड़ने हैं। स्क्रिप्ट वही है, अवाम समझ गए हैं, लोगों को शऊर आ चुका है, वो उन चीज़ों को मान नहीं रहे। फिर आप देखें कि जलसा हो रहा था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हो रहा था, इसमें इंसान गए हैं, इसमें मुसलमान गए हैं, लेकिन यजीद के दौर की याद ताज़ा हुई। ठीक है, जनरेटर आप रोक सकते हैं, साउंड सिस्टम आप रोक सकते हैं, लोगों को रोक सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये विजुअल सारे बता रहे हैं, घोड़े, साइकिल, सारी चीज़ें, कंटेनर्स को हटाना, फिर भी लोग आ रहे हैं। जब लोग वहाँ पहुँच गए तो क्या किया इन्होंने कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया की होटल मालिकान को हदायत, पीटीआई वालों को ना रिहाइश ना खाना देना है, और ना ही किसी किस्म का
कैटरिंग का सामान देना है और हुक्म पर अमल न करने की सूरत में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस्लामाबाद 29 मकामात से बंद है, जलसा गाह जाने वाले तमाम रास्ते सील हैं। इस्लामाबाद कंटेनर स्थान बन गया है, मेट्रो बस सर्विस भी बंद है। मियां महमूद और रशीद के बेटे गिरफ्तार हुए। तो ये कोई यजीद ही कर सकता है भाई, किसी को रिहाइश नहीं देनी, किसी को मकान में जगह नहीं देनी, किसी को खाना नहीं देना, किसी को चीज़ें नहीं देनी, ये कौम भूखी भी चली जाएगी। ये प्यार मोहब्बत और इश्क जो है ना, ये अंधे होते हैं, इनके सामने आपकी ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो कोई मन ही नहीं रखती। तो लिहाजा यजीयत वाला काम नहीं कीजिए, अच्छे बच्चे बन जाइए और अच्छा काम कीजिए। दो छोटे छोटे और नुक्ते हैं। तहरीक इंसाफ ने 9 मई किसके कहने पर किया, और एक पागल इंसान जो है वो कह रहा है, और ये बंदा रिटायर्ड जो है ये पूरे डिपार्टमेंट की अक्कासी करता है कि जब ये इदारे से रिटायर्ड होते हैं तो इनका ज़हनी तवाज़ुन किस तरह का होता है। माज़रत, हमारे अबू-अजदाद भी इस इदारे में रहे, काम कर चुके। अब ये कैप्टन सफदर हैं, मरियम साहिबा के खामद हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, मुझे बड़े पसंद भी हैं। लेकिन कई बार क्या कहते हैं कि 9 मई को पीटीआई ने इंडिया के कहने पर हमले किए थे। जी, ये इंटेलिजेंस DGISI हैं, ये सरबराह है पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के। पाकिस्तान की फ़ौज को नहीं पता, इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता, ISI को नहीं पता, लेकिन कैप्टन सफदर को मनसेरा के पहाड़ों में बैठ के पता है कि 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंडिया के कहने के ऊपर किया था। ये याद रखिएगा और इस बात को मानिएगा, कबूल कीजिएगा, ईमान ले आए इस बात के ऊपर कि 9 मई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंडिया के कहने के ऊपर किया था। ये कानून से ऊपर जो खोपड़ी उठा रखी है ना, इसमें भूसा भरा हुआ है। ये शऊर नहीं है, इन लोगों को अक्ल नहीं है कि इंडिया के कहने के ऊपर इमरान खान की पार्टी ने 9 मई किया था। हाँ, अगर 9 मई इंडिया के कहने के ऊपर किया गया था तो इसमें से PTI निकाल दें और बाकी ये इल्ज़ाम दूसरों पे लगा दें जिन्होंने करवाया था। जिब्रान नासिर परेशान क्यों हैं और वो कहते क्या हैं और कहना क्या चाह रहे हैं। मैं हैरान हूं कि हमारे पास क्या एक भी होनहार हाज़िर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल नहीं जो PCB के चेयरमैनशिप संभाल सके और क्रिकेट को बचा सके। मोहसिन नकवी भले जनरल साहब की सिफारिश पर आए हूँ, मगर हैं तो आखिरकार एक सिविलियन और इसलिए महदूद सलाहियतों के मालिक हैं। जिब्रान नासिर ऐसा कह रहे हैं, तंज किया है उन्होंने। क्या फ़ौज के अंदर और लोग मौजूद नहीं हैं जो PCB के चेयरमैन बने और क्रिकेट को बचा लें? तो ये आज का गोरख धंधा था। बताइएगा, आप जलसे में इस वीडियो को देख सकते हैं, कहाँ कहाँ से आप जलसे में गए हैं, क्यों गए हैं, क्या सोबतें बर्दाश्त की। तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।